हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, भगवद्विदा भगवतस्तीर्थ भूत स्वयं भो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदा प्रथा। वो तीर्थ स्थान सबसे पवित्र और पावन है जहाँ न केवल गंगा जमुना सरस्वती का समागम हो, लेकिन सोने पे सुहागा वहाँ पर हर प्रकार के साधु संतगण एकत्रित हों और वो साधु संत समागम से वहाँ एक दूसरे ही प्रकार की अलौकिक अनुभूति हम अनुभव करने लगते हैं। आइए, आज कुंभ मेले में इस्कॉन के टेंट पे आए हैं मूलभूत जर्मनी के रहने वाले यशोमती नंदन प्रभु, जो कि ओरिजिनली जर्मनी के थे, लेकिन कदम्ब कानन स्वामी महाराज के अब शिष्य हैं। अब पेरिस में वो सेवा करते हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो सनातन धर्म के प्रति प्रभावित कैसे हुए। सो थैंक यू वेरी मच यशोमती नंदन प्रभु फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर कुंभ मेला सेटअप। वी आल्सो हैव His Grace Sanatan Prabhu, who is coordinating the entire Kumbh. So my question to you is, how did you come to the Hare Krishna movement? You were belonging to which religion before? I have to tell you honestly, it was the prasadam that got me, and it made me Krishna-ized. Prabhupada would say that with Krishna's mercy, everything can be Krishna-ized. So my life was completely Krishna-ized. The prasadam, it reminded me of my past lives as a yogi, bathing in the holy rivers. Oh, And it got me back to the spirit of Bharata. wow. And I felt connected to the Bhagavad Gita, the Sanskrit, and Srila Prabhupada. This is at what age? This was around my hippie times when I was traveling without money Okay. with a bicycle through America. And it was that times when you grow long hair, but you also grow compassion. And you want to know what's the truth. And on that journey, we have to have someone imparting truth onto you. So can I ask you, what was your name before? What's your legal name? My legal name is Jan, which is coming from John from the Bible. Oh, wow. So you are belonging to Christian family? That is about my beginning 20 years or so. I didn't turn back. I still love Jesus, and I hope that all the brothers of the Christians and the Vaishnavas, they make united brotherhood. So were you Catholic or Protestant or which denomination? It is called Lutheran. Luther was a reformer. Okay. He wanted scriptures to be properly interpreted, and he knocked on the door 95 theses for the proper theology of God consciousness. And after some time, of course, we want to know who's Jesus. We went to the Holy Land, and it Wow. is a journey. So John now became यशोमती नंदन। John अब यशोमती नंदन दास बन गए और प्रसाद से प्रभावित होकर और भगवत गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर हिप्पी के दिन बिता रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि अपने सनातन धर्म को पालन करूंगा। If there is one particular philosophical point from the Gita and the Sanatan Dharma tradition which really inspires you and you want to share with everybody, what would be that one point be from the Bhagavad Gita? Yes. Krishna, the name Krishna means all attractive. The name alone, Krishna, means all attractive. And this includes everything. It includes all religion, it includes all philosophies, it includes all sentiments, rasas. It includes everything as humans meant to be. So Krishna alone, the name, means all attractive. And just by chanting Krishna, in the Bhagavad Gita, Krishna chants. But just hearing that is the perfection of what we want as synthesis, as unity in our life. And that yoga, that is bhakti yoga. Of course, Krishna says so much, but alone the name Krishna, that reverberated in my heart, and that all-inclusive spirit that made me feel home. Wow. What's your age, यशोमती नंदन? This body is now 29 or so, देखिए, still growing. केवल 29 वर्ष के नौजवान जो जर्मनी में पैदा हुए, अमेरिका भर में घूमे, भटकते हुए, जीवन के लक्ष्य को ढूंढते हुए, खोजते हुए अब
इस्कॉन के पेरिस मंदिर के राधा श्री राधा पैरिसीश्वर की सेवा में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि संपूर्ण सनातन धर्म की शिक्षाओं में सबसे आकर्षक उनको लगा कृष्ण का नाम। कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक, जो कि रसराज श्री कृष्ण सभी रसों और 6 स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, नॉलेज, ब्यूटी, रेनंसिएशन सबसे अभिभूत, उनको लेकर ये आकर्षित होकर जिन्होंने जीवन समर्पित किया, अब गीता का ज्ञान ये वितरित करते हैं। आपको तो पता ही होगा, इस्कॉन अब विश्व के 1100 मंदिर, लगभग 120 देशों में हम विभिन्न प्रकार के सेवाओं में लगे हुए हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। इस डिवाइन ग्रेस शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब सर्वप्रथम अमेरिका जाकर 1966 में इस्कॉन की स्थापना किए तो उन्होंने लोगों को कृष्ण नाम दिया, उन लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दिया और स्वयं अपने हाथों से वो गुलाब जामुन बना बना कर खिलाते थे और कहते थे इसका नाम है इस्कॉन बुलेट्स, और कहते थे इसको स्वीकार करने पर हम माया के आक्रमण को पराजित कर पाएंगे। क्योंकि जैसे गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लम्बे सर्वग्रंथ नाम विप्र मोक्षा। लोग कहते भजन के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं तो कहता भजन भोजन के लिए तो समय है भाई। तो इसीलिए अगर आपने जीवन को बदलना हो और कुंभ मेले में आकर अगर आपने स्नान किया हो, नहीं भी किया हो, या घर पे बैठ कर ये देख रहे हो इस एपिसोड को, तो अवश्य आज से संकल्प कीजिए कि घर पे जो भोजन बनेगा वो शुद्ध शाकाहारी भोजन, बिना प्याज और लहसुन के, और भगवान को भोग लगाकर आप स्वीकार कीजिए। आप इस्कॉन के मंदिरों में गोविंदास रेस्टोरेंट में आए होंगे, इस्कॉन के महाप्रसाद को वितरित करते हुए देखे होंगे, स्वीकार किए होंगे। देखिए स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन चेतना सुधर जाएगी। और देखिए 29 इयर्स ओल्ड का लड़का, इतने सब कुछ वैभव और विभिन्न प्रकार के सुख उसके पास उपलब्ध होते हुए भी यहाँ आए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मंदिरों के अंदर सनातन धर्म के अंतर्गत जो शक्ति है, वो शक्ति आत्मा को जैसे खींचती है, वो अभूतपूर्व है। आइए हम सभी दर्शकों की ओर से यशोमती नंदन प्रभु को इस्कॉन बुलेट या गुलाब जामुन भेंट स्वरूप दें। प्लीज एक्सेप्ट द गिफ्ट महाप्रसाद।